1989, I had my first order of DL-8072 digital tank. And that was my beginning with the DRDO, with RDD. After that, we did first prototype, second prototype, third prototype, and all the big equipment they wanted to make, I was the preferred partner. So IBM is one of the major industrial partner of DRDO at that time, because they were nobody. We were all in the organized sector. They were looking for bulk business, like OEM business. But I was looking for the opportunities only. So if you get the opportunity in your way, please grab it. That is the first lesson I would say. That opportunity can be a challenge also to you. It may be a big hurdle, but if you take the challenges, then only you are recognized that you can get the job done. And that's what I did in all my years, and still today I am one of the preferred source of hydraulic cylinder for steel mill industries compared to Textron, Parker, Eaton or other people. And I am supplying to all the EPCs suppliers like SMS, Danieli, as well as Primetal as a preferred supplier. So that is what my recognition, and definitely I look forward all the steel plants in the city, in the Bihar is an endeavoring state, or Jharkhand is an endeavoring state, they should also support me, which I need as support. Only thing I would say that if you are an MSME, the challenges will always be there. The challenge will be for the money part, challenge with the technology part, challenge with the market part also. But market, if you are determined to give a quality product to your customer, market is not an issue. They will always come to you. That's what for the last 35 years I have seen. My customers who have been there with me, they are still with me. Even a small cylinder I have applied to Tata Motors is already diesel about 30 years back. Still I get a repeat order of that. Though it's small, hardly 25,000-30,000 rupees, but I don't mind. I only recognize that yes, I am considered a buyer supplier for a repeat item of that. Thank you. प्रकाश जैन ने की थी सन 1988 में। स्टार्टिंग से डीआरडीओ के साथ जुड़े थे और काम हमारा मिलता गया, बढ़ता गया। ऑस्कर इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, हम हाइड्रोलिक सिलेंडर्स और उसके सिस्टम्स बनाते हैं। डीआरडीओ, डिफेंस और स्टील सेक्टर में हम सब जगह दे रहे हैं। सब बड़े कस्टमर्स हमारे हैं, सेल यूनिट्स, टाटा, जिंदल, ऐसा, ये सारे हमारे कस्टमर्स हैं। डीआरडीओ में एल&टी, टाटा, VML सब कुछ देते हैं। डीआरडीओ को भी डायरेक्ट देते हैं तो डीआरडीओ एजेंसीज अलग अलग सिस्टम्स कि हाँ कर सकते हैं। उसमें परेशानियाँ आती हैं, परेशानियों को सॉल्व करना, उसके डटे रहना और काम करके दिखाना, ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ मैंने सीखी है और वो करते हैं हमेशा। इस तरह सफलता मिली है। थैंक यू सर। निकल गया उससे मैंने। नमस्कार फ्रेंड्स, पृथ्वी से लेकर आकाश तक आपको पता है कि पृथ्वी से आकाश तक पहुंचने में इंडिया को 1988 टू 2022 1988 से लेकर ये जर्नी की शुरुआत हुई और 2020 में आकाश और मेनी मोर। इसके बाद आपको इस विषय में मैं और विशेष जानकारी देना चाहता हूं। साइंटिफिक रिसर्च और वो डीआरडीओ की जो एक मोटिवेशनल टीम, उसी डीआरडीओ टीम में हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे कलाम हुआ करते थे, उसी से बिलोंग करते थे और उसी डीआरडीओ के वो समझिए कि ये डीआरडीओ का एक बहुत बड़ा कप्तान थे वो, और उन्हीं अग्नि 5 के जन्मदाता डीआरडीओ के कप्तान एपीजे कलाम साहब और उस डीआरडीओ में काम करने वाले बहुत ऐसे उनके टीम के सदस्य और टीम के लोग जिनसे मैं आज आपको परिचय कराऊंगा। आज आप बहुत फॉर्चुनेट हैं और हम बहुत फॉर्चुनेट हैं कि हमारे साथ वो कंपनी ऑस्कर, जो डीआरडीओ का एक मेजर डीआरडीओ इंडस्ट्री पार्टनर है और वो 1988 से डीआरडीओ को सर्व कर रही है, डीआरडीओ को सप्लाई कर रही है। डीआरडीओ को हाइड्रोलिक सिस्टम, जो कि एक टेक्नोलॉजी का और हैवी मशीनरी के यूटिलाइजेशन का सबसे टफ और टफेस्ट टूल होता है, डीआरडीओ मैकेनिज्म होता है वो डीआरडीओ का वो हाइड्रोलिक सिस्टम। और वो हाइड्रोलिक सिस्टम को
सप्लाई करते हैं, मेंटेन करते हैं और उसको सस्टेन करते हैं। तो आज ऑस्कर जो नाम ही काफी है, क्यों? क्योंकि डीआरडीओ के साथ मिल जाने से डीआरडीओ भी गौरवान्वित है ऑस्कर से, और ऑस्कर को तो कहना ही क्या, क्योंकि ऑस्कर तो ऑस्कर है। आज मैं उन्हीं के आज चेयरमैन कह लें, उन्हीं के एमडी कह लें और उनके फाउंडर कह लें, आज हमारे साथ वीपी जैन साहब हैं। वीपी जैन साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपने कलकत्ता में इंडस्ट्री लगाई और कलकत्ता में इंडस्ट्री लगाने के बाद आज पूरे हिंदुस्तान को सर्व कर रहे हैं, और डीआरडीओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया को भी अब सप्लाई कर रही है बहुत सारे इक्विपमेंट्स और बहुत सारे टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी में आपकी भी टेक्नोलॉजी जाती है। डीआरडीओ को आप हाइड्रोलिक सिस्टम सप्लाई करते हैं, बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा सिस्टम, क्योंकि विदाउट उसके, क्योंकि जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी का परेड देखते हैं इंडिया गेट के सामने, तो आपको दिखाया जाता है कि इंडियन आर्मी कैसे 5 मिनट के अंदर में बड़ा सा बड़ा ब्रिज बना लेती है। तो बड़ा सा बड़ा ब्रिज जो बनता है वो टोटली हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है। सबसे मेजर एग्जांपल है बड़ा से बड़ा होता है, रॉकेट लॉन्च होता है अपने फ्यूल से, जो उसकी टेक्नोलॉजी से। हमारा जो इक्विपमेंट हाइड्रोलिक है उसको पोजीशन में लेकर आता है, आफ्टर गिविंग द सर्विलियंस एम कर उसको पोजीशन में लाने के लिए हाइड्रोलिक काम करती है, उस पोजीशन में लाकर उसके बाद में तब उसकी फायरिंग होती है। जी बिल्कुल। उसके एक जो फ्यूल सिस्टम है, अब तो जो फ्यूल सिस्टम है ड्राई फ्यूल सिस्टम है, और वो ड्राई फ्यूल सिस्टम जो उसको लॉन्च किया करती है रॉकेट को, लेकिन उसकी पोजीशनिंग, उसकी सस्टेनेबिलिटी, उसके ग्राउंड की क्लियरेंस सारी हाइड्रोलिक सिस्टम ही तय करती है। क्यों? क्योंकि जब तक वो सही तरीके से स्टेबल नहीं होगा तो फायर होने के बाद वो क्या कर सकता है, अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंचेगा। तो आज वो हाइड्रोलिक सिस्टम की चर्चा होगी। सर, आपने डीआरडीओ के साथ काम करके बहुत बड़ा बेहतर एक अपॉर्चुनिटी तो हासिल किया ही खुद के लिए, और आप जैसे अपने बिजनेसमैन होने के नाते अपने जैसे सारे इंडियंस के लिए, लेकिन डीआरडीओ अपने लिए गौरव है। तो डीआरडीओ के साथ जब आपने काम शुरू किया तो क्या महसूस किया आपने, और डीआरडीओ के साथ जब आपकी जर्नी चलती रही तो 2020 तक या 23 तक की जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए। डीआरडीओ से मेरे संबंध 1982-83 से थे, जब मैं अपनी प्रीवियस कंपनी जहां मैं सर्विस करता था तब से वो मेरे को जानते थे। और जब 88 में मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी, उसके बाद में उनको पता था इनको इसके बारे में पूरी जानकारी है, वो चाहते थे कोई नया पार्टनर रहे जो मैं जहाँ काम करता था, और क्योंकि मैं जानता था मेरे पास टेक्नोलॉजी थी, मेरे को जानकारी थी, उनकी कंडीशन यही थी कि आप अपनी फैक्ट्री दिखा दो जैन साहब और ऑर्डर ले जाओ। अच्छा। और मैंने फैक्ट्री दिखाई उनको पसंद आई फैक्ट्री। पसंद आने के बाद उनको मेरे को फर्स्ट BLT T-72 लॉन्चर का ऑर्डर दिया, जिसके लिए उसके बाद उनकी लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन हुई, उसके बाद बल्क प्रोडक्शन भी हुआ। ये सब जर्नी 20 साल तक चलती रही। इसके बीच में जब पोखरण का ब्लास्ट हुआ, उस समय तक अग्नि के सिलेंडर सब जर्मनी से आते थे, और जब पोखरण का वार हुआ तो अग्नि जर्मन गवर्नमेंट ने जो जर्मन मैन्युफैक्चरर थे उनके पास जाकर उनको ये बोल दिया ये आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, और वहीं पर उनका सामान वहीं जब्त कर दिया। यहाँ तक कि किसी एक कंपनी के डायरेक्टर को जेल में भी रखा। जब हुआ तो डायरेक्टर जो R&D के डायरेक्टर हैं मिस्टर MR जोशी, उन्होंने बुलाया मेरे को, यानी तुम बोल रहे थे ये काम करना है, अभी अपॉर्चुनिटी है, पकड़ लो। मैं कहा डेफिनेटली मैं पकड़ने को तैयार हूँ सर, ये तो अपॉर्चुनिटी चाहिए मेरे को। और वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने मेरे को दी। आज तक मैं आई एम द वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट सिलेंडर मैन्युफैक्चरर फॉर द अग्नि। एक सेंटर फॉर अग्नि 1 to अग्नि 50 सेट्स, और यही अग्नि अपनी मिसाइल है कि जो कि पूरी दुनिया को एक समझिए कि इंडिया को अगर आज 1 to 3rd और 1 to 4th में लाने के लिए तो अग्नि का सबसे बड़ा रोल है। सर, आपने 50 सिलेंडर्स या 50 सेट्स आपने प्रोवाइड किया, तो ये सब मिसाइलें जब डीआरडीओ लॉन्च करती है, जब उसको आप एकदम बिल्कुल अपनी उसके ऑर्बिट में अपना वो चला जाता है, कामयाबी के साथ वो प्रवेश करता है, और यहाँ तक कि एक बार और भी देखने को आपको मिला
कि थोड़ी सी मिस हैपनिंग हो गई तो प्रधानमंत्री जी खुद वहां पहुंच करके पूरे अपने टीम को गले लगाया और बोला कि ऐसा चलता रहता है। इसरो में हुआ था। लेकिन अग्नि में लेकिन कहने का मतलब कि एक साइंटिस्ट लोगों की जब टीम कोई काम करती है तो थोड़ी सी भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो एक बहुत बड़ी उसके लिए पूरी दुनिया में मैसेज जाता है। तो जब आपकी दिए हुए सामान का DRDO यूटिलाइज करती है और उसकी कामयाबी होती है तो जब पूरे दुनिया में चर्चा चलने लगता है तब आपको कैसा महसूस होता है? क्योंकि आपको तो ये लगता होगा कि उसमें जो ये सब सिस्टम काम कर रहे हैं वो सब तो हमारे दिए हुए हैं और हमारे साथ मेहनत किए हुए। इतना गर्व महसूस होता है कि हम हमारी जो मेहनत है या जो हम किया वो हमारे देश के काम आ रही है। और भी बड़ी बड़े कारनामे हम लोग आगे फ्यूचर में, क्योंकि कोई भी चीज जब ग्रोथ होती है तो उससे और बेहतर चीज के लिए हम काम करते हैं, तो उसके लिए भी काम चल रहा है। और हम सब लोग भारत का जब इतना काम करने के बाद हम 5th इकोनॉमी है, 4th, 3rd, 2 और 1 भी होंगे, तो उसके लिए भी आज हम बहुत बड़े गौरवान्वित हैं। और आज एक सेकेंड लास्ट नोट आपसे, सेकेंड लास्ट बात है कि इतनी सारे इस जर्नी में बड़े सारे चैलेंजेज आए होंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा होगा कि जैन साहब आप कहाँ से शुरू किए और कहाँ पहुँचना चाहते हो। जैसे APJ कलाम से किसी ने कहा था कि आप शुरुआत रामेश्वरम से किया और सोचते हो कि आप साइंटिस्ट बन जाओ, DRDO और इसरो में चले जाओ, काम करोगे, ये संभव नहीं है। लेकिन उन्होंने माधवन जी के लिए, चाहे बड़े बड़े अपने साइंटिस्टों के लिए गुरुवत उनका रात रात भर इंतजार करते थे और एक एक नोट उनको लेकर उसका रिसर्च करते थे और उस खोज पर आज उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में ताकत क्या है। आप में भी कुछ ऐसा ही मटेरियल हमको दिख रहा है कि आपने वो चैलेंजेस को मीट करते हुए यहाँ तक मैं ये कहूँगा कोई भी एक आदमी अकेला कुछ नहीं कर सकता है। जब तक उसकी एक टीम जो डेडिकेटेड टीम हो और जो वो चैलेंज ले ले, उनका रास्ता दिखाए, उनका मेंटर बने और उनको मॉनिटर करे, तब जाकर सफलता मिलती है। मैंने यही काम किया, मेरे को अच्छे आदमी मिले जो मेरे इस जर्नी में मेरे को साथ दिया। मैं उनका सभी का शुक्रगुजार हूँ, बगैर उनके मैं कुछ नहीं हूँ। आज वो हैं तब तक हम हूँ। तो मेरा सारा जो विषय है मेरी टीम को देना चाहता हूँ, मैं अपने आप नहीं लेना चाहता। मैं तो उनके लिए एक मेंटर था, रास्ता दिखाने वाला था, उनको सही रास्ता बताने वाला था, उनकी यहाँ प्रॉब्लम आ गई उसे सॉल्व करने वाला था, काम करने वाले वही थे। सर आप बहुत समझिए कि भारत के एक रत्न हैं और आपकी टीम सबसे बड़ी बात है कि वो सैल्यूटेबल है। सर जितने हमारे भारत के लोग हैं और जितने हमारे नागरिक हैं, जब वो टीवी पे 15 अगस्त 26 जनवरी को देखते हैं तो आप सब लोगों के बनाए हुए इक्विपमेंट जब टीवी पे गरजते हैं, पूरी दुनिया को बताते हैं कि भारत शेर है, और शेर का गर्जना जब सुनाई देती है तो भारत के लोगों का बड़ा गौरव होता है। आपकी तरह ही गौरव करते हैं वो। क्या कहना चाहेंगे, भारत का भविष्य डिफेंस सेक्टर में कितना महफूज है और पूरी दुनिया को हम आगे 20 साल में कहां तक पहुंचने वाले? इसकी शुरुआत ऑलरेडी हो गई है और जो पिछले लास्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग थी मोदी जी की, उससे तो और भी उसको बल मिला है। आज जो अमेरिका इंडिया AI इसको किसी हिसाब से भी लो, पर वो एक स्लोगन जो है वो आज का स्लोगन ये कामयाब होगा। और इसके साथ में जो सपना है मोदी जी का भी, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड, वो सही साबित होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हमारे बीच बहुत ही यंग जैन साहब, आपने अपने पिताजी को काम करते हुए देखा है और लाइक फादर लाइक सन, मैंने आपसे बात करने से पहले कहा था, क्योंकि आप बिल्कुल उसी तरह, उसी मोटिवेशन और उसी जज्बा से काम कर रहे हैं अपनी कंपनी के लिए। ऑस्कर जो कि DRDO का समझिए कि इंडस्ट्री पार्टनर है और सबसे बड़ी पार्टनर है और बहुत ही सस्टेनेबल पार्टनर है, क्योंकि इंडिया बाय द इंडिया फॉर द इंडिया ऑफ द इंडिया ऑस्कर से ही पूर्ण होता है, क्योंकि ये टोटली इंडियन मेड है। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आपने पिताजी से वो खास गुण जो सीखा है वो आज बताइए हमारे लाखों दर्शकों को जो जानना चाहिए, क्योंकि वो सब भी भारत को सर्व करना चाहेंगे। कमिटमेंट सबसे ज़्यादा करना है, करके दिखाना है, ये अपने अंदर सबसे पहले होना चाहिए, तब जाके आप कर पाओगे। तो ये बहुत बड़ी सीख मैंने सीखी है उनसे, पिताजी से। अब अपने जैसे यंगस्टर्स को, क्योंकि आप जैसे यंग लोग बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते जा रहे हैं, आज जो बैठक थी CII की लगभग उसी सब विषय पे थी कि कैसे हम MSME को स्ट्रेंथन दें, मजबूत करें
और सर ने बहुत अच्छा वहाँ पे डिस्कशन किया, कहा कि शुरुआत कहीं से की जा सकती है, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए तो भारत का MSME पूरी दुनिया में राज करेगा। सर के पूरे भाषण का मजमून ये था। तो स्वाभाविक है कि सर ने तो लीड बाय एग्जाम्पल हैं, उसके लीडर हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये MSME में जितने सारे आपके दोस्त काम कर रहे हैं उन सब लोगों के लिए, या जो करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? MSME बैकबोन है, बड़ी इंडस्ट्रीज की बैकबोन MSME है। MSME रहेगी तभी बड़ी इंडस्ट्रीज रहेगी। तो हमारा बल हमेशा रहेगा, और इस बल के लिए जो भी अगर CII जैसी जो उन्होंने आज करते हैं उसके साथ चलेंगे तो हमेशा ग्रो कर पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सर, आपसे तो इंडिया टीवी ऑनलाइन मैं ऑफिशियली ये बात को अनाउंस करता हूं कि मैं आपसे बात करके बहुत गौरवान्वित हूं, क्योंकि मैं उस DRDO के ऑफिस जो दिल्ली में सेटल्ड है, मैं कई एक बार विजिट करने का हमें प्राउड मौका मिला है, और हमने वहाँ के कई एक साइंटिस्टों से बात किया है। वहाँ के साइंटिस्ट जब वो काम शुरू करते हैं तो उनको ये पता नहीं चलता कि आज तारीख 3 है तो कल 30 तारीख हो जाएगा। वो डेट नहीं गिनते, वो काम के पूरा होने पर अपनी कमिटमेंट पर और अपने असाइनमेंट पे काम करते हैं कि आज जो मैंने असाइनमेंट लिया है पूरा होगा तभी हम कुछ करेंगे। मैंने APJ कलाम साहब को कई एक बार उनके कमरे में, उनके सूट में खिचड़ी खाते हुए देखा है। मैंने कितने बार उनको मीटिंग लेते हुए देखा है, जो उन्होंने बिल्कुल एक साधारण सी गंजी और लुंगी पहन के बात कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपसे बात करके बहुत गौरवान्वित हूं, क्योंकि उस DRDO को मैं समझने में बहुत ही ज्यादा समय लगाता था कि ये DRDO इंडिया को कैसे सर्व करती है। लेकिन आज मेरे को पता चला कि DRDO को सर्व करने वाले लोग कैसे कैसे हैं। तो DRDO नाज करती है BP जैन साहब जैसे लोगों पर, DRDO नाज करती है हमारे उस रत्न पर, भारत के डॉक्टर APJ कलाम जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे, उन पे नाज करती है। DRDO नाज करती है हमारे ऐसे यंगस्टर्स पर कि जो भारत के भविष्य को बदलने के लिए ठान लिया है। और DRDO नाज करती है हमारे भारत के उन सभी सपूतों पर जो उनके सारे इक्विपमेंट को लेकर और हमारे बॉर्डर पे या हमारे और किसी भी एरिया में डटे रहते हैं। तो ये DRDO का कमाल है। DRDO हृदय स्थली है भारत के डिफेंस का, साइंटिफिक रिसर्च का, भारत की सुरक्षा का और भारत के मस्तक का। तो ये हृदय स्थली जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा भारत ग्रो करेगा। और उस हृदय स्थली में BP जैन साहब जैसे लोग हैं और उन्होंने भारत का नाम रोशन किया है। फिर से सैल्यूट सर। मैं इंडिया टीवी ऑनलाइन से आपको बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि DRDO और DRDO की सारी टीम भारत को सर्व इसी तरह करती रहे और हम उनके न्यूज और उनके मैसेज को जन जन तक पहुंचाते रहें। इंडिया टीवी ऑनलाइन की वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों में मैसेज दीजिए कि DRDO और DRDO की टीम भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।